Hello students and welcome to G3 e-learning classes of English class 10th, and today we are going to do our 5th chapter, Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. It is from your book. It has the same name, Footprints Without Feet. So first of all, I give you some introduction of the chapter. This story is about a scientist who discovers a wonderful drug to make him invisible. After swallowing the potion, the scientist turns to various mischiefs. He steals clothes from a supermarket and then steals lots of cash. To avoid getting notices, the scientist moves from London to a small village. He stays at a local inn in the village. Inn means you can say the dharamshala, where the owner itself used to reside there. And when he is out of money, he steals from a clergyman's house. The local people suspect him and police is called. He escapes the police because of his ability to become invisible. So let's start our chapter. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? So, from the starting of this chapter, the two boys who saw the muddy imprints of a pair of bare feet, कि वो पैरों के निशान देखते हैं और वो कीचड़ से भरे हुए हैं. What was a barefooted man doing on the steps of a house? कि एक इंसान वो क्या कर रहा है जो कि bare feet है, ठीक है, इन अ मिडल ऑफ लंदन, जो कि ये कौन सी जगह की बात कर रहे हैं, मिडल ऑफ लंदन की. एंड वेयर वॉज द मैन. अब वो फुटप्रिंट्स तो नज़र आ रहे हैं लेकिन वो फुट नज़र नहीं आ रहे. अब यहाँ पर ये जो दो बॉय हैं वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि वेयर वॉज द मैन. अगर यहाँ पर फुटप्रिंट्स हैं लेकिन जो मैन है वो वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा. एज दे गेज्ड, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. See, gazed means घूरना और बहुत ही ध्यान से देखना. Okay, so look at the careful. Looked, or you can say looked intently. अब वो बहुत ही ध्यान से उस मार्क्स को देख रहे हैं और उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा. अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. कि फ्रेश मीन्स जो फ्रेश मड है, यानी कि अभी जो वो मड है वो अभी भी गीला है और वो फ्रेश लग रहे हैं फुट मार्क्स, लेकिन कोई भी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा. फर्दर, फुटप्रिंट्स followed one after another, descending the steps and progressing down the street. अब एक के बाद एक जो फुटप्रिंट्स है वहाँ पर आते जा रहे हैं रोड के ऊपर, और जो वो फुटप्रिंट्स है डिसेंडिंग द स्टेप्स, यानी कि स्ट्रीट में नीचे की तरफ जा रहे हैं. द बॉयज़ फॉलोड, और जो बॉयज़ हैं उन फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे हैं. फैसिनेटेड until the mud impressions became fainter and fainter. और ये बहुत हैरान है. fascinated means हैरान होना और strongly attracted होना, ठीक है. ये बहुत ही ज़्यादा strongly attracted है towards this impression, और ये faint होते जा रहे हैं मीन्स क्योंकि जैसे जैसे ये जो पर्सन है चलता जा रहा है तो जो mud impression है वो भी धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं, मीन्स धुंधले होते जा रहे हैं. At last disappeared, और लास्ट में क्या हो जाते हैं, disappear means गायब हो जाते हैं altogether. The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been, bewildered means होता है यहाँ पर confused. Okay,
मिस्ट्री मीन्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, बहुत ही सिंपल थी। और जो ये कन्फ्यूज्ड बॉयज़ थे had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। और ये एक्सप्लेन करना बहुत ही इस मिस्ट्री को एक्सप्लेन करना बहुत ही इजी था, क्योंकि अभी जो ये साइंटिस्ट है इसने अभी अभी जो है वो डिस्कवर किया है कि कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। मीन्स यू कैन सी थ्रू द बॉडी। ओके, so Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible। अब ये जो ग्रिफिन है, ग्रिफिन मीन्स यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम है ग्रिफिन, जो कि इनविजिबल मैन है। और इसने ये एक साइंटिस्ट है और इसने एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट किया है ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि ह्यूमन बॉडी भी इनविजिबल बन सकती है। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass। अब आगे क्या कहते हैं कि ये जो है वो रेयर ड्रग को स्वॉलो करता है, मीन्स उसको पी जाता है, एंड हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट। और ऐसे जैसे एक शीट ऑफ ग्लास होता है, जैसे एक शीट ऑफ ग्लास है उसके आर पार आप देख सकते हैं, वैसे ही इट्स बॉडी बिकम ट्रांसपेरेंट, became transparent। And brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person। Lawless person means a person who do not obey the law, a person who does not obey the law। So यहाँ पर ग्रिफिन को lawless person बताया गया है। His landlord disliked him and tried to eject him। यहाँ पर जो उसके जो लैंडलॉर्ड है, मीन्स जिनके यहाँ वो किराए पर रह रहा है, वो उसको पसंद नहीं करते और वो उसे निकालने के लिए की कोशिश करते हैं। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। और अब क्योंकि ग्रिफिन लॉलेस पर्सन है और शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो वो रिवेंज लेने के लिए क्या करता है, मीन्स उस घर में आग लगा देता है जहाँ पर वो रहता है। To get away without being seen, he had to remove his clothes। अब क्योंकि वो डिसअपियर है, अब इनविजिबल हो चुका है और वो ये चाहता नहीं है कि कोई भी उसे नोटिस करे, तो इसके लिए वो क्या करता है, अपने सारे जो बॉडी से जो क्लोथ्स हैं उसको रिमूव कर देता है, उतार देता है। Thus it was that he became a homeless wanderer। homeless wanderer होते हैं a person who roam अराउंड, ओके, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, और इन हिंदी यू कैन से आवारा, ठीक है, जिनका घर नहीं होता। तो thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, और इसने क्लोथ्स भी नहीं पहने हैं, without money क्योंकि इसके पास पैसे भी नहीं है, and quite invisible, और ये invisible है। until he happened to step in some mud, और जब तक कि इसने किसी मड में यानी कि कीचड़ में पैर नहीं रखा था, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक, और फुटप्रिंट्स इसने छोड़े जैसे ही चल रहा था, तो फुटप्रिंट्स भी उस मड के जो है वो स्ट्रीट के ऊपर और रोड के ऊपर आ रहे थे। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in the London। मीन्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर वो फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ता तो वो ईज़िली उन बॉयज़ से जो है वो एस्केप हो सकता था, उनसे छुप सकता था। बट His adventures were by no means over। लेकिन जो उसके एडवेंचर्स हैं वो अभी भी ख़त्म नहीं हुए थे। Okay, so adventure means here daring experiences अभी ख़त्म नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसने बहुत ही बैड टाइम चूज़ किया था साल का, कि वो जो है इस तरह से लंदन की गलियों में घूमे विदाउट क्लोथ्स। इट वॉज मिड विंटर, ये मिड विंटर का टाइम था, बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस टाइम पर। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। बिटरली मीन्स
एक्सट्रीमली कोल्ड, और जो विंटर थी, जो एयर थी वो बहुत एक्सट्रीमली वहाँ पर कोल्ड थी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो बिना कपड़ों के घूमना पॉसिबल उसके लिए नहीं था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. अब यहाँ पर क्योंकि उसके लिए पॉसिबल नहीं है इतनी ठंड में जो है घूमना, तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो एक लंदन के बिग स्टोर में जो है स्लिप इनटू मींस वहाँ पर घुस जाएगा बिना किसी को बताए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब जो क्लोजिंग टाइम था वो आ चुका था, मींस उस स्टोर का बंद होने का। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड feeding himself without regard to expense. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्रिफिन जैसे ही डोर बंद हुआ उस स्टोर का, तो ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ प्लेजर, कि जो उसने वहाँ पर कपड़े पहने और उसने वहाँ पर वो इंजॉय कर सकता था विदाउट एक्सपेंस, यानी कि कोई भी खर्च किए वहाँ पर कपड़े और फूड को वो इंजॉय कर सकता था। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. और उसने जो है बॉक्सेस को ओपन किया, रैपर्स को खोला, और जो क्लोथ्स उसको फिट आते थे अपने आप को गर्म करने के लिए, उसने वार्म क्लोथ्स जो है उसमें से निकाले। Soon with shoes, an overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. और थोड़ी ही देर में उसने क्या किया कि वो फुली ड्रेस्ड अप था, और ऐसे लग रहा था जैसे कि एक विजिबल मैन होता है, ठीक है। शूज़ पहने उसने, ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट। ब्रिम्ड, वाइड ब्रिम्ड मीन्स एक एज, ब्रिम्ड मीन्स एज, एक चौड़े किनारे वाली जो हैट है उसने वो पहन ली अपने आप को गर्म करने के लिए। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee. अब किचन में, अब ये एक सुपर स्टोर है जहाँ पर उसको सब कुछ, कपड़े, ग्रॉसरी, यू कैन से कुछ भी, यहाँ पर सुपर स्टोर में हर चीज़ मिलती है, खाने का सामान, कपड़े और इवन क्रॉकरी, एवरीथिंग. So, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. और फिर उसके बाद उसने जो है खाने के लिए स्वीट्स लिया, वाइन लिए ग्रॉसरी स्टोर से. Finally he settled down to sleep on a pile of quilts. और फाइनली उसने जो है आराम करने के लिए जो क्विल्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर सोने के लिए जो वो चला जाता है. इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल. वो कहते हैं कि अगर ग्रिफिन जो है वो मैनेज कर लेता जल्दी उठना, तो उसके लिए जो है ये अच्छा टाइम रहता और उसे ये जो जितना भी अब जो मैसअप होने वाला है उसके साथ वो नहीं होता. It was he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. तो वो जो है वो नहीं उठा, मीन्स अपनी नींद से नहीं जागा जब तक कि असिस्टेंट, जो उस शॉप के जो असिस्टेंट थे, उस स्टोर के जो असिस्टेंट थे, वो नेक्स्ट मॉर्निंग में आ चुके थे. When he saw a couple of them approaching, और जब उसने देखा कि उनमें से कुछ जो है उसकी तरफ आ रहे हैं, he panicked and began to run. और वो जो है ना पैनिक हो गया. पैनिक मीन्स अपसेट हो जाना, ठीक है. तो वो पैनिक हो जाता है. पैनिक मीन्स यू कैन से द गॉट स्कार्ड और नर्वस. ओके, सो then he began to run, और वो भागने लगा. They naturally gave chase, और naturally वो उसका पीछा कर रहे थे. In the end he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. लेकिन वो उनसे कैसे बच पाया? उसने जल्दी से क्या किया, जो नए क्लोथ्स उसने पहने थे उनको फिर से उतार दिया. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air.
अब जो है उसने वो फिर से अपने आप को इनविजिबल करने में तो कामयाब हो गया, बट वो क्या था, नेकेड था, मीन्स उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था और जनवरी की बहुत ही चिल्ड यानी कि जमा देने वाली ठंड थी और हवा चल रही थी. This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. This time he decided to try the stock. अब यहाँ स्टॉक जो है थिएट्रिकल यहाँ पर बात की गई है, यानी कि थिएटर के स्टॉक, यानी कि जितने भी आर्टिफिशियल जैसे मुस्टैचेस हैं, जितने भी प्रॉप्स थिएटर में यूज़ किए जाते हैं, लाइक विग है, मुस्टैचेस है, अदर जो मीन्स आर्टिफिशियल नोज़ है, वो सब इसने यहाँ से जो है लेने का डिसाइड किया. एंड but also something that would hide the empty space above his shoulder. अब उसके शोल्डर से ऊपर का हिस्सा यानी कि जो फेस है और जो उसकी नेक है उसको भी छुपाने के लिए उसने वहाँ पर क्लोथ्स ढूंढे. Shivering with cold he hurried to ड्ररी लेन. ड्ररी लेन एक लंदन में एक प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे थिएटर्स हैं. द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, और इसे सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड भी कहा जाता है ड्ररी लेन को. ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, और जल्दी ही उसे एक सुटेबल शॉप, यानी कि सुटेबल क्यों, क्योंकि वहाँ से उसको इसके मतलब का सारा सामान मिल सकता था. ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers. whiskers होते हैं फेशियल हेयर्स, यानी कि जो कान के साथ आपके जो हेयर्स होते हैं उनको whiskers कहा जाता है. एंड अ लार्ज हैट. अब ये जो है ना ऊपर स्टेयर्स की तरफ जाता है उस शॉप में और बहुत सारी चीज़ें जो है पहन कर नीचे आता है. उनमें क्या है, बैंडेजेस राउंड द हिज फोरहेड, मीन्स उसने अपने फोरहेड पर और फेस पर पूरा बैंडेज से कवर कर लिया है. डार्क ग्लासेस उसने अपने फेस पर लगा लिए हैं, आइज पर फॉल्स नोज लगाई है, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हेड, और उसने एक लार्ज हेड भी पहना है. To escape without being seen, he closely attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. और अब क्या करता है, ये जो है ना closely होता है the way that shows cruel, ठीक है, cruel, और ये बहुत क्रूरली जो है ना शॉपकीपर को पीछे से अटैक करता है और सारा जो उसका पैसा होता है वो लूट लेता है. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. Iping जो है एक विलेज का नाम है और ये जो है क्राउडेड एरिया, यानी कि लंदन का जो क्राउडेड एरिया है वहाँ से जाना चाहता था. तो वो क्या करता है, एक ट्रेन पकड़ के और आइपिंग विलेज की तरफ जाता है. Where he booked 2 rooms at a local inn. वहाँ पर जो है वो एक लोकल इन में 2 रूम्स बुक कराता है. इन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक प्लेस है जहाँ पर उस जगह का मालिक भी साथ में ही रहता है और ये जो है रूम जैसे लाइक होटल्स रूम होते हैं तो सब फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं अपने गेस्ट को. द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर was in any case an unusual event. अब विंटर में, यानी कि उस टाइम पर विंटर में उस इन में किसी स्ट्रेंजर का आना ये कोई आम बात नहीं थी. मीन्स यूजुअली लोग वहाँ पर नहीं जाते थे विंटर्स में. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस. अनकॉमन अपीयरेंस क्यों है, क्योंकि मीन्स वो दिखने में अनकॉमन क्यों है, क्योंकि उसने जो है बहुत सारी बैंडेजेस अपने फेस पर डाली हुई है, उसने पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है. सेट ऑल टंग्स वेगिंग, और ऑल टंग्स वेगिंग मीन्स वो चर्चा का विषय बन गया था. वेगिंग वैसे टॉक करना होता है, मीन्स वो टॉक ऑफ द टाउन हो गया था. मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ. अब यहाँ जो इन की जो मालकिन है, ठीक है, वो मिसेस हॉल है और वो लैंडलॉर्ड्स की वाइफ है. मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, और वो उस गेस्ट के साथ यानी कि ग्रिफिन के साथ हर वो एफर्ट करती है फ्रेंडली होने के लिए. बट
ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन किसी से भी बात नहीं करना चाहता। एंड टोल्ड हर, वो उसे कहता है, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स अलोन, लोनली। ओके, सो वो कहता है कि उसकी डिज़ायर यही है कि वो जो आइपिंग इसलिए आया है कि वो अकेले रहना चाहता है। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड बाय एनी वर्क। वो कहता है कि मेरा जो है वो विश नहीं थी कि मैं जो है वो किसी भी तरह से जो है अपने काम में मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और वो उसे बताता है मिसिज़ हॉल को कि एक एक्सीडेंट की वजह से उसका फेस बहुत अफेक्ट हुआ है, इसीलिए उसने उसको पूरा बैंडेज से कवर कर लिया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, अब वो सेटिस्फाइड होती है, उसको लगता है कि जो ये बहुत ही सीरियस टाइप का जो है वो साइंटिस्ट है, इसलिए वो उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। एंड और एसेंट्रिक का मीनिंग एक और है स्ट्रेंज साइंटिस्ट। ओके, सो वेयर आई वॉज, हाँ यस, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और वो इसलिए भी उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही थी क्योंकि जो ग्रिफिन है उसने उसको एडवांस में भी पे कर दिया था। मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज़ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, और मिसिज़ हॉल ने अपने आप को जो है वो तैयार कर लिया था, या यू कैन से कि प्रिपेयर कर लिया था कि उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स और इरिटेबल टेम्पर क्या था, वो शॉर्ट टेम्पर था, उसको जल्दी गुस्सा आता था। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग मीन्स कि जो चुराए हुए पैसे थे, यानी कि जो ड्ररी लेन से जो इसने पैसे जो चुराए थे या रॉब किए थे, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चले, यानी कि जो चुराया हुआ पैसा है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। आपको जो है अपनी लिविंग के लिए कुछ ना कुछ अर्न करना पड़ता है, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और उसके पास अब बिल्कुल भी कैश नहीं था। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. और वो क्या pretend कर रहा था मिसेस हॉल के सामने कि उसका एक चेक आने वाला है और वो किसी भी वक्त आ सकता है। So, my dear students, this is the first part of this chapter, and next part we will do in the another video. Thank you so much.